इंडिया में दिस कैटेगरी को एज अ मेसिएस्ट कैटेगरी देखा जाता है। मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट है, वो मीट में हो चाहे वो बेवरेजेस में हो। द मेसियर द प्रॉब्लम इज द बिगर द अपॉर्चुनिटी इज। थैलियों में ही चल रहा है। कस्टमर की भी एक लेवल पे मेरे को लगता है गलती है, क्योंकि वो भी मजबूर हैं खाने के लिए। जो रिटेलर्स हैं उन्हें लगता है कि सब चलता है वाला एटीट्यूड है। इतना बिजनेस है कि गंदगी भी बिक रही है। To name a few Licious, Fresh to Home. So they are also solving this. फूड लेवल पे इंडिया इज malnourished ओवरऑल। Recently there has been a controversy regarding an egg brand. Chemicals were found in their product. So don't you see like बहुत ज़्यादा diversification है। एक कैटेगरी को बहुत बड़ा करके then you focus on the new category. जनरली बहुत कुछ नहीं होता है। में जो चैलेंज है वो यही है कि जो लोकल दुकान है वहीं पे सुधार नहीं हुआ है। जो competitors हैं, to name a few Licious, Fresh to Home. So how are you ensuring to compete with such deep-pocketed giants? Also, do you get a pressure from investors to like burn the money and acquire more customers rather than focusing on pat? आई एम अंडर नो प्रेशर। कैसे टेस्ट करते हैं कि is it a fresh, is it bad meat? चेक कर पाते हैं विद द आई ऑफ द फिश। So you supply the same quality of meat. यस एब्सोल्युटली। You'll see ये होता है कि जो रेस्टोरेंट्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं इतने फ्रेश नहीं है बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द किचन। एंड यू सी कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी जब ये अदर अनलिस्टेड प्लेयर्स आएंगे। यस एब्सोल्युटली। आई हैव बॉट माई सेल्फ। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। Why the promoter holding so low? Have you ever get a guilt regarding the business that you're doing? Zapfresh could be the next what? If you are a 20-year-old, what would you advise him? स्टे अवे फ्रॉम MNCs, stay away from IT companies, be in the business community. Path is only and only how do I make money every day. That should be the theme of your life. कि business ही करना है और कुछ करना नहीं है. Don't have a plan B here. मुझे नींद नहीं आती थी रात को because of my obsession, to Okay. make money. In a sector dominated by massive burn and venture-backed giants like Licious and Fresh to Home, one player has done the unthinkable, stayed profitable while going public. Zapfresh isn't just surviving the meat delivery wars, it's rewriting the playbook as the only listed and profitable company in its category. Today we speak to founder Dipanshu Manchanda. From mastering the supply chain to launching high-margin new products, Dipanshu has scaled Zapfresh with a discipline rarely seen in the D2C space. In today's episode, we break down the Zapfresh business model, the secret sauce against competitors, and the mindset shift required to turn a startup into a public company. Hi everyone, welcome to Green Sharks. My name is Abhay Gulati and today we have with us Dipanshu Manchanda, the founder of Zapfresh. अगर आप entrepreneur या investor हो and looking for the next big FMCG play, this episode is for you. Let's dive in. Building a business in India's unorganized meat market is tough, and creating a 250 crore market cap company along with the profitability is the next big thing. That's what Zapfresh has done. आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे दीपांशु मनचंदा की स्टोरी फ्रॉम फिनटेक टू अनऑर्गेनाइज्ड, फ्रॉम अनलिस्टेड टू एन IPO एंड चैलेंजेस दैट ही फेस्ड. दीपांशु, प्रायर टू दिस आई सॉ कि आप एक फिनटेक ब्रांड में थे एंड नाउ इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी इन अ मीट ब्रांड. एंड इंडिया में दिस कैटेगरी को एज अ मेसिएस्ट कैटेगरी देखा जाता है. सो हाउ दिस ट्रांजिशन टुक प्लेस? अभिषेक, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट है, वो मीट में हो चाहे वो बेवरेजेस में हो चाहे वो फिनटेक में हो. जो भी आप ज़्यादातर बिजनेसेस इंडिया में देखोगे हैज़ बीन मोस्टली अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस. तो टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट किया है सारे अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस को. तो हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये इतना मैसी है या कितना मैसी है. आई थिंक द मेसियर द प्रॉब्लम इज़ द बिगर द अपॉर्चुनिटी इज़. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो इवन इफ यू लुक एट फिनटेक, उसमें तो कैश ही चल रहा था. कैश कितना मैसी है. सब डिमोनेटाइजेशन वाज सो मैसी. राइट तो उसमें अपॉर्चुनिटी देख के ही तो लोगों ने बिजनेसेस बनाए हैं. राइट. तो जहाँ मैस है वहीं पे जाना मेरे हिसाब से बेस्ट है. So it was money that you saw in this business? Yeah, like what drove you? I think the size of the market was the biggest parameter for me. Today the meat consumption in India is almost $55 billion. इतना बड़ा market और absolutely unorganized. Almost 95% of the market is unorganized और ये grow कर रहा है. मतलब हर साल 10-12% की growth होती है इसके अंदर. अब वो कैसे कैप्चर हो रही है, कैपिटलाइज हो रही है, कौन उसको टैप कर रहा है. कंपनीज तो नहीं आ नहीं रही सेक्टर में. Right. तो फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा. Right.
तो इसमें लाइक व्हाई डू यू थिंक द की रीजन व्हाई इट्स सो मच अनऑर्गेनाइज्ड? देखिए, इट हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम मिडिवल एजेस। मीट को आपको कभी भी पुराने टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो दुकानों में ही बिक रहा है, थैलियों में ही चल रहा है। तो वो एक मेरे को लगता है कि बिकॉज ऑफ द मेस एंड द होल अनहाइजीनिक पार्ट ऑफ इट, किसी ने उसको ग्राउंड्स अप से साफ करने की कोशिश नहीं करी है। और कस्टमर की भी एक लेवल पे मेरे को लगता है गलती है, क्योंकि वो भी मजबूर हैं खाने के लिए। तो वो जो रिटेलर्स हैं उन्हें लगता है कि सब चलता है वाला एटीट्यूड है। ये सब चलता है वाला एटीट्यूड ही एक नए न्यू एज कस्टमर के लिए मेरे को लगता है कि बॉटल नेक है। मेरे लिए वही था कि मैंने बोला कि जब मैं पैसा आपको फालतू दे रहा हूँ, एक कस्टमर एक रिटेल स्टोर पे पैसा सही दे रहा है, फालतू दे रहा है, 30 रुपये फालतू, 50 रुपये फालतू, 100 रुपये फालतू, तो मेरे को प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, या प्रोडक्ट सही साफ सुथरा क्यों नहीं मिल रहा? बेसिक एक्सपेक्टेशन है। बट वो रिटेलर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका माल बिक ही जाता है। मतलब इतना बिजनेस है कि गंदगी भी बिक रही है। ओके। आप सोचिए, जब गंदगी भी बिक रही है तो अगर आपने अच्छा कर दिया तो वो और कितना बढ़िया बिकेगा। बट काफ़ी अब D2C ब्रांड इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी, लाइक टू नेम अ फ्यू लिशियस, फ्रेश टू होम, सो दे आर ऑल्सो सॉल्विंग दिस। सो देयर इज अ डिफरेंस या सारे एक मार्केट में दे आर केटरिंग? देखिए, हमारा जो पूरा फोकस है वो वैल्यू ओरिएंटेशन पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वी आर नॉट ओनली फोकस टूवर्ड्स मीट, वी वांटेड टू सॉल्व द मीट प्रॉब्लम फर्स्ट, बिकॉज इट्स द लोएस्ट हैंगिंग अपॉर्चुनिटी व्हेन वी लुक्ड एट इट। द विजन वाज दैट वी डिडंट सी कि हमें सिर्फ मीट ही करना है। हम चाहते थे कि पूरा एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स बने और वो एक एफएमसीजी कंपनी की तरह ऑपरेट करे, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट्स रहें, विच इज़ रिटेल, विच इज़ हॉरेका, B2B, ऑनलाइन। तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन का प्ले है। और प्रोडक्ट साइड पे वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यू ओरिएंटेशन को फोकस करते हैं, और जहाँ पे हाइजीन और हेल्थ, इस पे फोकस किया जाता है कि जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्वालिटी में, और मार्केट को वो प्रोडक्ट दें जिसकी डिमांड बढ़ भी रही है और एक गैप भी है इंडस्ट्री में। तो दैट वाज द थॉट। Okay. So prior to this, you also had a experience into like business. Yeah, this was the first one. नहीं, मैं तो आई थिंक स्कूल टाइम से दुकान पे बैठना शुरू कर दिया था। Okay. और वहाँ पे पापा की दुकान थी, वहाँ पे बैठता था और वहाँ पे पैसे कमाए ठीक ठाक। बट वो मेरा फ्यूचर नहीं था। मेरे को लगता था कि ये दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई वांट टू डू। तो फिर वहाँ से निकल के आई थॉट की पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करके जॉब कर लेते हैं। तो सारे फ्लेवर्स ट्राई करे, बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया, छोटी कंपनीज़ के साथ काम किया। तो समझ में वही आया जो आई थिंक डीएनए में होता है तब। हाँ, कि अगर बिजनेस फैमिली है आपकी तो यू ऑलवेज फील मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डूइंग योर ओन बिजनेस। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि अगर कोई इस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं है आपका तो आपको ज़ीरो से शुरू करना होता है। Right. तो वैसे ही मैंने शुरू किया था। और उसमें कोई सपोर्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी हमारा बहुत डेवलप नहीं था उस टाइम पे 2011-12 में। इन्वेस्टर्स, वीसीज, एंजल्स, एक्सेलरेटर्स, कोई भी नहीं होता था। तो वो HNIs के साथ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कुछ US में या यूरोप में फिर भी डेवलप था। तो वहाँ से कुछ कैपिटल वगैरह रेस करके मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चलाए, और इंटरनेशनल लेवल पे ही फिर उनको सेल भी किया। देयर वाज एजुकेशन कंपनी आई स्टार्टेड, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हो रहा था तो मैंने वो सेल आउट कर दिया था। और ऐसे करके फिर मैंने बहुत 2-3 छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था जो नहीं चले। और उसके बाद आई थॉट दैट इट इज़ बेटर टू वर्क with a smaller company to learn the business nuances. So startups उस टाइम पे फिर डेवलप होना शुरू हो गए थे 2013-14 में। स्विगी, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, ये सब एक मोमेंटम शुरू हो गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन मोबीक्विक। वहाँ पे भी अच्छी लर्निंग मिली। आई वाज लुकिंग आफ्टर द डिजिटल वॉलेट strategy for e-commerce. We were the early ones at that point. So overall, I think I've seen the ecosystem, develop very beautifully from nothing to so much today, that it is sometimes, unbelievable the kind of growth India has seen in this entire domain.
सो इफ यूल सी लाइक काफ़ी लोग ग्लैमरस पिक्चर देखते हैं, दैट बीइंग एज अ फाउंडर लिस्टेड कंपनी, लिव इन गुड़गांव एंड फंड रेज कर लिया. सो हाउ डू यू सी लाइक काफ़ी चैलेंज होगा बिकॉज प्रायर टू दिस यू आर इन लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू आर गेटिंग फिक्स सैलरी, देन फॉर लाइक इनिशियली यू डोंट गेट एनीथिंग. तो हाउ वाज दैट जर्नी? तो अभिषेक, जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग से मेरा फोकस वाज दैट आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, वेदर I learn first or whether I burn my hands first, that was not the problem. The more important thing was कि learning कहाँ मिल रही है और faster inorganic growth कहाँ पे है. ठीक है, उस फोकस के साथ जब आप काम करते हो तो फिर जो ये फिक्स सैलरी और जो ये जितने भी खर्चे वाली बातें हैं थोड़ा बैक सीट ले लेती हैं, क्योंकि ऑब्सेशन एक लेवल का है. राइट. और वो ऑब्सेशन ने ही आई थिंक जो भी किया है. और हमने प्रैक्टिकली बस ये चीज़ें हुई हैं कि अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको मिनिमाइज्ड रखा है, जहाँ पे और खर्च करने का टाइम कहाँ है आपके पास. राइट. कहाँ करोगे खर्च आप, जब आप हर टाइम कमाने में ही सोच रहे हो और आइडियाज़ ही आपके पास आए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप हासिल कर रहे हो, तो कहाँ पे पैसा खर्च करोगे. राइट. तो वो डेवलप ही नहीं हुआ कि जहाँ पे आपका इनकम है और साथ में खर्चा बढ़ रहा है और इनकम कम हो रही है. आप समझ रहे हैं, जब खर्चा ही नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे टाइम ही नहीं है, तो इनकम ही बढ़ेगी ना. राइट. राइट. एंड यू ऑल्सो टच कि इंडिया में 90% प्रोटीन डिफिशियंसी है. सो पीपल आर गेटिंग अवेयर. ये ट्रेंड आपको टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 में और बियॉन्ड दैट ऑल्सो विजिबल. नहीं, देखिए, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ पे हमारा भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़ रहा है. तो फूड लेवल पे, न्यूट्रिशन लेवल पे इंडिया इज़ मैलनरिश्ड ओवरऑल. एंड अब तो वो इतना ज़्यादा हजार्डस हो रहा है, वेदर यू लुक एट वाटर, एयर, हर एक चीज़ में एक पॉइजनस और एक हजार्डस सिचुएशन सी बन गई है. तो ऑल द मोर वी शुड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, तो फॉर द अवेयर educated, this is very 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 obvious. But tier 2 में I think it is still not that prominent, कि वो अभी भी फिर भी एक उस पर्टिकुलर फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे दे आर मूविंग टूवर्ड्स मोर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स, कि हमें बेटर प्रोडक्ट चाहिए, बट लेकिन दे डोंट नो कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है. इतनी अवेयरनेस वहाँ पे इतनी डेवलप नहीं है जो टीयर 1 में है. सो आई वुड से कि ये वाला जितना भी पूरा ग्रोथ है वो टीयर 1 में से फर्स्ट आता है, फिर वो टीयर 2 पे जाता है. राइट. इन from organized, like unorganized to organized, then even in terms of per capita also, tier 1 cities have a better per capita income. Correct. So you see the main reason, like income is also a very key reason कि ये लोग like इतनी income नहीं, that's why they're not focusing on the meat, like protein consumption. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रोटीन कंजम्पशन तो बहुत हो रही है. आप अगर एक ऐसी मार्केट्स, आप उड़ीसा जाइए या बिहार जाइए, वहाँ पे हम अभी जब रिसर्च कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि फार्मर्स जो चिकन ग्रो करते हैं वो काट के खुद ही खा रहे हैं. ओके. आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने कुछ कंट्री चिकन्स हैं, कुछ विमेन फार्मर्स जो ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने कोविड के टाइम पे वो ग्रो भी कर रहे हैं और वो खा भी रहे हैं. तो ग्रोइंग की कॉस्ट इतनी नहीं है. इट इज़ बेसिकली द मार्केट लिंकेज विच एड्स अप टू द कॉस्ट. एक फार्मर के पास तो मिनिमम इनकम है, तो वो तो प्रोटीन बहुत खा रहा है. राइट. भाई बाजरा है, मिलेट है, वो तो वहीं से निकल रहा है ना. तो निकल तो टीयर 3 से ही रहा है, तो पहले तो वो कंज्यूम करेंगे. तो आपके आते आते महंगा हो जाता है. हाँ, राइट. और हम बोलते हैं कि ये तो उनके लिए भी महंगा है. ऐसा नहीं है. राइट. ओके. एंड नाउ अगर देखोगे वीगन का काफ़ी पॉपुलरिज्म बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड. सो डू यू सी कि इंडिया में भी एक कंजम्पशन स्टोरी पे एक हैम्पर हो रहा है, और इट्स जस्ट लाइक फैंसी टर्म दैट इज देयर? नहीं, आई डोंट थिंक वीगन शुड बी द फोकस. प्लांट बेस्ड या फिर प्रोटीन शुड बी द फोकस, क्योंकि वीगन इज स्टिल वेरी फैट, टू मच फैट इज देयर इन वीगन. एंड बहुत सारे ब्रांड्स मेरे को नहीं लगता है कि वो उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं जहां उन्होंने सोचा होगा. ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन हुआ नहीं है इंडिया में इतना एट अ मास लेवल. कम्युनिटी लेवल पे बहुत एक्टिविटी है. आप छोटी कम्युनिटी में अपने किसी फ्रेंड सर्कल में जाओ, वहाँ पे वीगन की बातें हो रही हैं, बट वो उससे कोई देश थोड़ा चल रहा है हमारा, और आपकी पॉकेट थोड़ा भर रही है इससे. राइट. तो वो तो सिर्फ बातों के लिए है और कभी कभी ट्राई करने के लिए है, और दैट्स इट. Okay, so now let's talk about the industry. So how is this industry growth across the world and India?
क्या ग्रोथ रेट्स हैं, कितना बड़ा टैम है? देखिए ग्लोबली तो बहुत बड़ी मार्केट है। यूएस में पर कैपिटा कंजम्पशन जो मीट की है वो करीब 85 केजीज पर पर्सन है, और इंडिया में दिस इज़ अबाउट 6 to 7 केजीज। अभी Okay. बढ़ के थोड़ा 8-9 हो गया होगा, बट देर इज़ नॉट मच पर कैपिटा कंजम्पशन विच इज़ देयर। दैट इज़ द रीज़न प्रोटीन डेफिशिएंसी इज ऑल्सो देयर, कि अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 10x का फ़र्क है कि एक आदमी अगर साल में सिर्फ 7 किलो प्रोटीन खा रहा है इंडिया में, और यूएस में वही 90 किलो खा रहा है, बहुत फ़र्क है। ओके। तो ये एक ग्रोथ अगर इंडिया इसको कैचअप करता है तो मेरे को लगता है जो हमारा ओवरऑल मीट कंजम्पशन 55 बिलियन का है वो भी 2x 3x कैसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। But we see that per capita consumption in US of everything is very high. So if you see electronics, if you see gold का भी, and everything you name it. So how are you sure कि like this will play out as a trend in India, और just कि ये भी एक नंबर की तरह like we will be seeing? देखिए ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है, और ये बेसिक इसेंशियल है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इज़ नॉट इसेंशियल, यू नो, टेक्नोलॉजी यू नो इज़ बिकमिंग कमोडिटी टुडे लाइक मोबाइल फोन्स आर, बट वहाँ पे सबको पता है कि वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इंडिया इज़ नोन टू बी मोर हेल्थ कॉन्शियस देन अमेरिका। वहाँ पे सारे बर्गर्स खा रहे हैं, हम तो नहीं खा रहे, राइट। ठीक है। तो उस सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे ये ट्रेंड शायद थोड़ा ऑपोजिट रहे, जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरी कैटेगरीज में वहाँ नंबर्स बहुत हैं। इन अ वे यू आर राइट, बिकॉज हम हर एक चीज़ जो है वो वेस्ट से कंपेयर करते हैं। राइट। तो मेरा मकसद वो नहीं है कि हम वेस्ट से कंपेयर करें, हमारा मकसद ये है कि लोग जो खा रहे हैं वो उन देशों में वो ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हैं जो अच्छी हैं, जो यहाँ नहीं हो रही हैं। हम तो अच्छी चीज़ देख रहे हैं ना, कि भाई वहाँ प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है। Right. तो हम एक वो वाली चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं जो कि एक फैड है, आप समझिए, वो एक फेज नहीं है, वो एक कांस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न है विच इज़ अ गुड पैटर्न टू फॉलो। सो इंडिया आई थिंक शुड टेक यू नो लेसन्स फ्रॉम सर्टन वेस्ट मार्केट्स विच आर गुड। अब हमारे यहाँ से वो मोरिंगा पाउडर ले रहे हैं, तो खाने में आई थिंक इंडिया इज स्टिल वे अहेड देन एनी वेस्ट मार्केट। बट जब प्रोटीन की बात आती है तो हम इतना पिछड़े हुए हैं कि कोई मतलब बात ही नहीं है उसकी। ओके। एंड इज देयर एनी ग्रोथ रेट नंबर कि लाइक टोटल मार्केट किस रेट से ग्रो कर रहा है इंडिया या वर्ल्ड वाइड, एंड ऑल्सो अनऑर्गेनाइज वर्सेस ऑर्गेनाइज का क्या ग्रोथ रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए ग्लोबली तो नंबर मैंने बोला ना, पर कैपिटा लेवल पे अगर आप देखोगे तो इट विल गो 300-400 बिलियन प्लस टाइप नंबर जाएगा वो। बट उससे हमारा क्या मतलब है? Okay. अगर हमें तो टाइम ही देखना है, हमारे को तो अपना ही ग्रोथ रेट देखना है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जैसे हमने बोला कि वो एक बेसिकली गाइडेंस है रादर देन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। ठीक है। अब वो गाइडेंस के लेवल पे आप देख रहे हो तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे तो मीट इज़ द मेन प्ले। वीगन आया, एक दो कंपनीज बहुत अच्छे चली थी यूएस में जो वीगन की प्लांट बेस्ड चली थी, वो ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे भी यही ट्रेंड है कि ओवरऑल मीट प्रोटीन इसको तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, और ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, $55 बिलियन का अगर इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन है तो उसमें से 95% अनऑर्गेनाइज्ड है और 5% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। ओके। और हम जो फोकस कर रहे हैं वो 95 पे कर रहे हैं, हम 5% पे हमारा फोकस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो मार्केट साइज़ बहुत छोटा है और ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं उनको लड़ने देते हैं। राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ योर ब्रांड नेम इज ज़ैपफ्रेश, सो व्हाट डज इट मीन, एंड इसका कोई स्टोरी है? इसका स्टोरी यही है दैट वी वांटेड टू रेजोनेट आवरसेल्व्स विद द फ्रेश फूड यू नो पोजीशन, एंड हमने मीट भी नहीं डाला, टेस्ट भी नहीं डाला इसके अंदर, आप देखेंगे तो उसका यही मतलब था कि कल को हमें कोई और प्रोडक्ट्स भी करना है तो हम सेम ब्रांड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सो दैट वाज द लॉन्ग टर्म विजन। ओके। And Zap means fast, fresh is fresh, so it comes to you fresh, quick. Okay. And your listed name is DSM Fresh Foods. That is the company name, Okay. Which is just for the entity compliance basis, but the brand is Zap Fresh. Okay. Now let's go into the business model. So can you explain the revenue split of your current model? देखिए अभी हम करीब लास्ट ईयर हमने 130 करोड़ किया था रेवेन्यू,
इस साल हम अभी H1 तक करीब 100 करोड़ कर चुके हैं और उसमें हमने करीब 7 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और इसमें जो 50% बिजनेस है वो हमारा ऑफलाइन से आता है और 50% जो है वो ऑनलाइन से आता है। So online में what you do? डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आप ऑर्डर करिए ऐप से और वेबसाइट से, तो आपको डिलीवर होगा इन स्लॉट्स। वी हैव डिफरेंट स्लॉट्स। इट इज़ नॉट अ क्विक कॉमर्स लाइक फॉर्मेट। इसमें आपके पास स्लॉट्स होते हैं, आप चूज़ करिए जब आपको चाहिए तब आपको डिलीवरी मिलेगी। And कितना टाइम लाइक व्हेन लाइक प्रोसेसिंग से लेकर लाइक एट माई होम वो कितना डिले है? तो नहीं, डिले तो आपके पास देखिए, आपने अगर हमारे पास जो प्रोड्यूस आता है हमारे हब्स में वो सुबह आ जाता है Okay. करीब 8 बजे के आसपास। फिर आपको थ्रू आउट द डे वही प्रोड्यूस मिलता है। तो 24 आवर का ही जो आपको मिलता है प्रोडक्ट की 24 आवर पहले ही वो प्रोसेस हुआ है। And preservative do you add in it? देर इज़ नो प्रिजर्वेटिव विच वी एड, बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने से एक तो हम वी आर लुकिंग एट ourselves as a responsible and also as I said focus is on the health. तो वहाँ पे we ensure कि there are no preservatives, no chemicals which we use in our processing. तो प्रोसेसिंग लेवल पे कुछ ऐसे लोग कंपनीज हैं या कुछ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो केमिकल्स डालते हैं, जैसे फॉर्मलिन डालते हैं फ़िश के अंदर, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है। शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ती है एक्चुअली, उससे क्या होता है कि फ़िश की स्मेल ओवर पावर कर देती है केमिकल। Okay. केमिकल की स्मेल ज़्यादा आ जाती है, तो आपको अगर रॉटन फिश हो रही है तो आपको वो स्मेल आएगी ही नहीं। Okay. So these are very smart, unorganized hacks which small players, wholesalers, retailers, मंडीज में ये करते हैं। बट हमने भी उनसे ही देखा कि ये ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है। बिकॉज हमारे लिए तो सिंपल था कि जो लोकल मंडी में हो रहा है वही चीज़ हमें नहीं करनी है। Right. तो इट वॉज वेरी ईजी प्ले बुक फॉर अस। And recently there has been a controversy regarding an egg brand. So they were like chemicals were found in their product. So how you see this, and like industry में people see very like green farming या like no chemical farming, but still these things are going on. देखिए, फार्मिंग लेवल पे आप अगर जाओगे तो आपको हर एक चीज़ में कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, आप अगर क्रॉप्स में देखोगे तो क्रॉप्स में भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप बट वो तो फार्म लेवल पे हो रहा है ना। अब ये जो भी कंपनीज हैं वो फार्म लेवल पे कितना उनका इंटरवेंशन है, आई एम नॉट श्योर। बट व्हाट वी डू एज अ ब्रांड इज़ दैट वी डू आर टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ रैंडम टेस्टिंग होता है कि भाई आपने चेक कर लिया कि कोई केमिकल नहीं है। जब आपने बर्ड को लिया और आपने जिससे लिया, आपने उसके साथ भी टेस्ट रिपोर्ट्स और लैब रिपोर्ट्स वो आपके पास होती हैं। उस बेसिस पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसमें अगर वो अलाउड है तो वो अलाउड है। हम तो इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से जो फॉलो कर रहे हैं सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं। Right. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे हम एक्सपोर्ट में काम करते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि आपको जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने दिया है आप वो फॉलो करो। अब उसमें इट इज़ अ कॉन्शियस कॉल ऑफ द ब्रांड कि उसको वो कितना करना है कितना नहीं करना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे को ग्लूटेन फ्री करना है, फॉर एग्जांपल, ग्लूटेन फ्री गवर्नमेंट तो नहीं बोला ना, तो उनके तो एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं और उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ मोर critical here than the private intervention. So is government intervening? Is it? No, No. no. Okay. And in terms of, you also touched upon exports. So how much of your revenue is coming from exports? Abhi to there is no exports. We have just acquired a company in Chandigarh, which is called Ambrosia. They are in the export business, so we will start exports in the new financial year. Okay. And if you talk about like online model we discussed, what's in offline model? What you do? We are serving to a lot of hotels and restaurants, which is your all your restaurant chains in Bombay, Bangalore. Almost 500 restaurants are we are serving. So उनका पूरा एक supply chain हमने crack किया है, तो we sell them all the meat products, and then now with new range of products which are coming to us, we will expose that entire basket to them. Okay. You have B2C, like then Horeca, then exports also you're targeting. So don't you see like बहुत ज़्यादा diversification है from the current level? देखिए, मेरे को तो प्रोडक्ट पे पहले फोकस करना था। प्रोडक्ट कैपेबिलिटी कैपेसिटी हमने बिल्ड कर ली है। अब नाउ इट इज़ अबाउट बम्बार्डिंग
it into the market. And if you see any FMCG company today, they don't see it like कि बहुत diversification हो रहा है, उनको तो growth चाहिए, तो हमें भी growth चाहिए. अब वो growth कैसे आएगी? Growth वहीं आएगी जहाँ पे आप एक मार्केट और एक जोग्राफी देखिए या फिर एक चैनल देखिए जहाँ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड है और वो एक बहुत इजी मार्केट है पिक करने के लिए, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप अपना रेवेन्यू पिकअप करिए और उसके बाद अपने एफिशिएंसीज और कंट्रोल्स और कैटेगरी मैनेजमेंट को अगर आप अच्छे से बैलेंस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. सिंपल है. Right. But as a founder, like lot of new things are starting, right? So generally what companies do, एक कैटेगरी को बहुत बड़ा करके then they focus on the new categories. So how do you see it? देखिए जनरली कंपनियां तो मीट भी नहीं बेचती थी ऑनलाइन. हाँ, ठीक है, तो जनरली बहुत कुछ नहीं होता है. अब अगर एज एन एंटरप्रेन्योर हु इज लुकिंग टू डिसरप्ट एंड लुक एट डूइंग समथिंग विच हैजंट बीन डन, वो एक बैरोमीटर ही नहीं है. मेरा थॉट प्रोसेस वो है ही नहीं कि दूसरी कंपनी ने क्या किया. ठीक है, दूसरी कंपनी को जो समझ आता था उसने वो किया, हमारे को जो समझ आता है हम वो करेंगे. अभी तक जो हमको समझ आ रहा है वो प्ले आउट अच्छा हो रहा है, हमें उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरे लिए उतना ही बहुत है. Okay. Right. Like it's your own journey and you're not competing with anyone. Nobody. Competing with yourself. Yes. Right. That's one quality that a great founder usually have. Okay. Now coming to your like in terms of you, I also was going through PPT. So आप उन जो आपके offline business में जो butcher shops होती हैं उनको convert कर रहे हैं and giving them your brand name. Correct. So can you explain that business? तो देखिए वी आर अ प्योर SME कंपनी, यू नो, प्योर SME वेयर वी डील विद फार्मर्स, वेयर वी आर सेलिंग टू स्मॉल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, and then we are now looking at this project where we are going to modernize these existing meat shops. चैलेंज जो है वो ग्राउंड में जो चैलेंज है वो यही है कि जो लोकल दुकान है वहीं पे सुधार नहीं हुआ है. क्योंकि मासेस तो वहीं से ले रहे हैं ना, जो 95% अनऑर्गेनाइज्ड है वो कहाँ से ले रहा है. Right. So इसमें you are giving a franchisee to them. No. So what we are saying is that we will give you a better product and a better price, credit, infrastructure. You just have to become our channel partner. Okay. So there is only and only growth which we are bringing to them. And we are making money only by selling them the product. No as a fixed upfront cost take. There is no upfront cost we take. Okay. We are looking at partnering with the right meat shop operator who is looking to increase his business, who is proactively looking at increasing the size of the shop or looking at new practices, best practices. So it's most of the time we qualify these partners. अगर वो qualify नहीं करते हैं तो then we don't invest in them. Okay. And how many meat shops अभी तक कितनी convert अभी तक हमने इसमें पायलट किया है करीब 20 शॉप्स पे बैंगलोर में. इसमें वी आर लुकिंग टू टेक इट टू 100 शॉप्स वेरी सून. So the idea is to expand retail footprint through these channel partner stores. Okay. Now as you also told कि जो supply chain है like जो because you are like shipping in a day same day, so is it controlled by you? Yes. Okay. So it would be an asset heavy thing काफ़ी ज़्यादा. No. So we are not in the slaughtering business. We are only doing the last leg of processing, which is cleaning, packaging, deboning, storage. That's it. बाकी जो दो parts हैं farming और slaughtering, they're all on job work, which is getting done. So that ways we are very very asset light from this operation point of view. The new operation which we have gotten, which is the the new ready to eat value added products, that is asset heavy as a project. But logistics को पूरा own करना, that also becomes a very heavy cost. The logistics, we don't own everything. It's like mostly we use 3PL logistics partner also. Okay. for the vehicles, for the cold chain vans. तो वहाँ पे उनको हमने लीज किया हुआ है और लीज के थ्रू ही उनके साथ काम करते हैं. Okay. And your like जो competitors हैं, to name a few, Licious, Fresh to Home, they are heavily funded and market cap wise, although unlisted, but big giants. So how are you ensuring to compete with such deep pocketed giants? जैसे मैंने बोला हमारा फोकस इज 95%.
all of these, most of the other brands which are heavily funded are focusing on the just that 5% of the market. बहुत छोटा पाए है, टैम बहुत छोटा है वहाँ पे, तो वो हमारा पोजीशन एकदम डिफरेंट हो जाता है उस लेवल पे. तो दे आर फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट customer profile, we are focusing on a different customer profile, and then even if you see the distribution mix, वो भी फ़र्क है. अब हम होरेका में भी बेच रहे हैं, वो होरेका में नहीं है. राइट. ठीक है, अब हम रिटेल स्टोर का प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है. सो ऐसे करके देखा जाए तो हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यू निकलती है बिजनेस के लिए और कस्टमर के लिए, एंड देन इन्वेस्टर. सो वैल्यू ओरिएंटेशन एट एवरी लेग इज द फोकस, ना कि स्टोरी मेकिंग, स्टोरी बिल्डिंग या फिर और कोई किसी फैड के लिए हम काम करें, वो नहीं है फोकस. Okay. How will you say like USP of Zapfresh compared to your competitors? So we are today a portfolio of products which is beyond meat, first of all. Okay. Okay, meat has been one of the starting point, but we see ourselves as a food conglomerate which will cater to different complementing categories with meat, whether it is your value added products or you look at ready to cook, ready to eat, spices, masalas. तो हम एक पूरा portfolio of products बना रहे हैं which will be catering to different markets and different distribution channels. ये strategy मेरे को नहीं लगता कि कोई और follow कर रहा है. Okay. And your like competitors are like in losses. You chose profitability. Like, so was it something from the day one you had a clear mindset? We chose a model which was profitable. Okay. प्रॉफिटेबिलिटी चूज़ करना तो बहुत मुश्किल है. Right. आपका मॉडल अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चूज़ करता है तो फिर मॉडल गलत है. Right. तो हमने वही मॉडल चूज़ किया जो हमें लगता है प्रॉफिटेबल हो सकता है. Okay. बस दैट्स इट. Okay. And like you're not focusing कि थोड़ा स्पीड से सेल्स बढ़ा के मार्केट एक्वायर करके एंड देन like later on focus on the PAT. I will tell you the reason. So if you'll see Blinkit, it comes under Zomato. It's a listed company, right? However, their competitor Zepto जो है, that's unlisted. So their focus is not on PAT. However, when you become listed company, then your primary focus is PAT like your because Correct. P ratio. Correct. So it's a like एक company list हो गई and other is not listed. So और difficult होता है. Like don't you think? देखिए मैं अपना जनरली हमें ऐसा लगता है कि हमारे को सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है, जहाँ पे हमारा बिजनेस चलता रहे, ये इम्पोर्टेंट है, रादर देन भाग रहा है या फिर कितनी तेज़ भाग रहा है. ठीक है, हमें लगता है कि चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ मोमेंटम है, यहाँ ग्रोथ है, इस पे हम कैपिटलाइज करेंगे. अब हमें 10 साल हो गए, हमने एक लेवल का ग्रोथ अचीव किया, उस 10 साल में दूसरी कंपनियों ने क्या 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 कर दिया, मतलब आके चली भी गई. राइट. वो भागने का जो एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जब रेवेन्यू चेज कर रहे हैं तो उसमें आप कभी भी ऑफ हो सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सस्टेनेबल इन दैट ग्रोथ. तो हमें वो रिस्क नहीं लेना था, तो हमने वो नहीं लिया. उसके बाद जब हमने कोड को क्रैक कर लिया एफिशिएंसी के, उसके बाद हमारा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है. अब हर साल वी आर लुकिंग एट ग्रोथ ऑफ 70-80%, विच इज़ नॉट बैड. राइट. तो कहाँ से हम भाग नहीं रहे. Also, do you get a pressure from investors to like burn the money and acquire more customers rather than focusing on PAT? Like, No, nothing like that. I am under no pressure. okay. So, like, do you see this meat industry similar to an FMCG industry, or is it a different thing? Of course, it is a food product, fast moving consumer goods. तो ये भी फास्ट मूविंग ही है. मतलब अब अगर आप टियर 1 फैमिली में देखेंगे तो एक कोई भी हाउस होल्ड महीने में 2 बारी भी अगर वीकेंड्स पे खाता है तो 8-10 बारी वो खरीद रहा है. ये इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक पनीर. Right. तो पनीर इज़ FMCG. So there is a different challenge in this industry, like because you have to ensure same day delivery. वो तो मिल्क में भी है, ब्रेड में भी है. तो मिल्क ब्रेड भी एक लेवल पे FMCG में ही आते हैं. Right. And like, have you got any acquisition offer from your competitor? No, we have never attempted it. And do you have a focus to get acquired? No. Okay. Regarding, like, I was reading about the quality of meat in this industry.
So how much is it important? Although you discussed initially, but in terms of पूरे industry अब aware हो रही है, seeing the changes जो काफ़ी brands आ रहे हैं. So how is this impacting the quality of meat and कैसे test करते हैं कि is it a fresh, is it bad meat? देखिए इसको टेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि कितना फ्रेश है क्या नहीं है ये एक बड़ा ही पर्सनलाइज्ड इंडस्ट्री रहा है वेयर आप देखेंगे कोई भी घर का बड़ा है वो जा रहा है मार्केट वो देख रहा है अपने सामने कटवा रहा है और फिर वो ले रहा है तो ये एक जो बिहेवियर है वो इसीलिए है कि वो चेक कर पाते हैं विद द आई ऑफ द फिश एज वन ऑफ द पैरामीटर्स तो कुछ ऐसे देसी तरीके हैं जिससे वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं बट जो न्यू एज है जिसमें आप टेस्ट कराते हैं लैब रिपोर्ट्स हैं ये है वो उस लेवल पे अभी ये नहीं आया है कि जो आपको कोई रिपोर्ट ऐसा बता देगी कितनी फ्रेश है राइट. ठीक है तो वो एक ट्रस्ट का ही फैक्टर है टेस्ट का फैक्टर है जब आप बनाते हैं रेगुलर यूज़ करते हैं तो कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है सो आई थिंक दैट्स ब्रॉडली व्हाट इट इज़ आपके इंटरनल कंट्रोल्स जितने भी हैं वो आप जिस हिसाब से कस्टमर्स को बता पाते हैं प्रेजेंट कर पाते हैं फ्रॉम अ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन चैनल दैट इज़ वन वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट इन माई व्यू. And are consumer willing to pay the price for it, or is there a competition like market is जो burn कर रहा है money that player like उनका है कि पहले market capture करना है so pricing कैसा है like how is the pricing competition? तो हमारा बेंचमार्क जो होता है वो लोकल शॉप के साथ रहता है कि बिकॉज दैट इज़ द कस्टमर वी वांट तो प्राइसिंग हैज़ टू बी क्लोजर टू दैट एज मच एज पॉसिबल नॉट व्हाट इज़ चार्ज्ड ऑनलाइन जैसे बिकॉज वहाँ पे तो वो एक ही सेट ऑफ कस्टमर है वो जो ले रहा है नया तो उसमें ऐड हो ही नहीं रहा ग्रोथ कहाँ हो रही है वो ग्रोथ होनी थी कोविड तक जो थी वो हो गई ऑनलाइन में उसके बाद वो वापस जा चुका है. राइट. सो इसमें व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइसिंग अगर एक लोकल बुचर शॉप या मीट शॉप तो हमारा प्राइस करीब 15% 20% ऊपर रहेगा उनसे. ओके. दैट्स द ओनली थिंग फॉर द ऑनलाइन चैनल. ओके. बट फॉर द होरेका चैनल वी आर कॉम्पिटिटिव टू इवन लोकल होलसेलर. अगर हमारे साथ 400-500 होटल्स रेस्टोरेंट्स खरीद रहे हैं तो वो कुछ देख के खरीद रहे होंगे प्राइस और क्वालिटी उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है. शेफ्स खरीद रहे हैं वो तो राइट. आप देखिए हम तो घर बैठा जो कस्टमर है उसको तो कम पता होगा ना शेफ से. राइट. सो यू सप्लाई द सेम क्वालिटी ऑफ मीट. यस एब्सोल्युटली. आई एम आस्किंग दिस वाई बिकॉज इफ यूल सी होता है कि जो रेस्टोरेंट्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं इतने फ्रेश नहीं है बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द किचन. नहीं देखिए उसमें क्या करते हैं वो उनकी अपनी टेक्निक्स हैं उसके साथ जो भी वो करें बट हमारे लेवल पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं. अब उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया या उसको और कोई मैरिनेट कर दिया या और किसी तरीके से उसको प्रोसेस कर दिया दैट इज़ देयर प्रेरोगेटिव. वहाँ पे तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते. बट हमारे लेवल पे हमारे को जो उनको प्रोडक्ट देने का मैंडेट रहता है वो तो बहुत ही क्लियर रहता है कि दे वांट द फ्रेश. ओके. दैट्स इट. लाइक इफ यूल सी जो जनरली जो होरेका कस्टमर्स होते हैं प्राइस वहाँ पे मार्जिन भी आपके कम होंगे कंपेयर टू योर B2C. देखिए ग्रॉस मार्जिन कम है बट नेट मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है क्योंकि जब हम ऑनलाइन में बात करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हैं तो नेट रियलाइजेशन वहीं आ जाती है ऑलमोस्ट. ओके. एंड लाइक हैव यू फील्ड लास्ट 1-2 साल में इफ़ यू आर ट्रैकिंग द मार्केट सो कंज्यूमर स्पेस काफ़ी ठंडा है लाइक लार्ज कैप कंपनीज की अगर गाइडेंस यू विल सी सो आर यू फीलिंग द सेम थिंग कि कंज्यूमर का सभी पैसा नहीं है लाइक द इकॉनमी इज इन अ बिट डिफिकल्ट सिचुएशन. In a way you can say that but I would still say कि वो ठंडा देखने का बैरोमीटर अगर कंज्यूमर स्पेंड है ठीक है तो कंज्यूमर स्पेंड से हमारे को कोई मतलब नहीं है. हम तो ये चाह ही नहीं रहे कि आप ज़्यादा स्पेंड करो. हम तो ये चाह रहे हैं दैट लेट अस बी पार्ट ऑफ योर ग्रॉसरी बास्केट और उसके लिए हम आपको वैल्यू दे रहे हैं. भाई आप मीट खा ही रहे हैं. मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रही है अगर वो 20% 10% जो भी बढ़ रही है हमें तो वहाँ पे उसको उस कस्टमर के पास जाना है. राइट. हमें नई मार्केट क्रिएट करनी ही नहीं है. भाई $55 बिलियन का मार्केट है उतना कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में और वो ग्रोथ हो रही है हर साल 10-15% की. तो आपको स्पेंड में कहाँ से डर्थ नज़र आ रहा है. वो एक एक्टिविटी या आप एक इकोसिस्टम या वो इंडस्ट्री लेवल पे कोई बात कर रहे हैं तो दैट इज़ सेपरेट. राइट. बट कंजम्पशन लेवल पे कंजम्पशन तो बढ़ ही रही है. So like I was talking about from like large listed brands like if you'll see Marico या Britannia इनके like if you'll see the management because they are pan India present. So
at a pan India level थोड़ा सा things are a bit difficult shape, so like आई डोंट थिंक सो. अभी आप देखो ये ID फ्रेश is also into the food segment. Then there is ITC, which has acquired another company called Meetigo. एक 6-8 महीने पहले की बात, 1 साल हुआ हो. तो बहुत सारे ऐसे कंजम्पशन एक्टिविटी चल रही है इन M&A, और वेयर लार्जर कंपनीज आर बाइंग दीज स्मॉलर कंपनीज. प्लांट बेस्ड में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है. सो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट फूड कंजम्पशन, यहाँ पे बहुत मोमेंटम है. देयर इज अब नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज फ्रॉम अ लार्ज कैप market companies. That is something which I have not followed, because हम तो large है ही नहीं ना. right. तो स्मॉल में ही देखेंगे कि स्मॉल में बहुत हो रहा है कुछ. स्मॉल में बिजनेस ग्रोथ हो रही है, स्मॉल में डील्स भी हो रही हैं, स्मॉल में एक्टिविटी भी हो रही है. हम लिस्टेड हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है इंडस्ट्री के लिए. वी आर द फर्स्ट D2C फूड ब्रांड टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज. तो दैट वेज हम भी मतलब एक्टिविटी बना ही रहे हैं ना. So now we are talked about listing. So if you see the price to earning ratio, you are getting 19 approx. In terms of market cap to sales, because आपके peers are in loss making, so you are getting approx 1.6 to 2 multiple. And if I see the Licious, considering जो उनका market valuation है 12x पे trade कर रहा है, then Fresh to Home is trading at something 8x. So see कि like why this so much unparity, like देखिए हाँ, इनके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइस गवर्न करते हैं. हमारे पास रिटेल मार्केट जो है वो गवर्न करती है, और रिटेल एक इन्वेस्टर है जो कि बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है. मोस्टली जो बुल रन है वो इंस्टीट्यूशंस लेके आते हैं और रिटेल फॉलो करता है. हमने उल्टा किया है, हम रिटेल पे फोकस कर रहे हैं. तो इसलिए वो कंजर्वेटिव सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो वैसे सोचते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और बाकी जितने भी फाइनेंशियल बेंचमार्क्स हैं उस लेवल से देखा जाता है. इनको इंस्टीट्यूशंस देखते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट बुलिश आई, एंड बाद में जाके फिर वो पब्लिक करते हैं, उसमें रिटेल फॉलो करता है. हमने उल्टा किया है. राइट. एंड यू सी कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी जब ये अदर अनलिस्टेड प्लेयर्स आएंगे, बिकॉज दे विल बी लिस्टिंग एट अ हायर वैल्यूएशन जो भी लग रहा है. सो यू डू सी फॉर अ शेयर होल्डर एक वैल्यू रेट. एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा. कोई भी अगर फूड न्यू एज कंपनी विद सच हाई वैल्यूएशंस बाय इंस्टीट्यूशंस कम टू द मार्केट, everybody will get the benefit of it. Okay. And coming to your recent quarterly numbers, H1 versus H1, so you saw 43% का sales growth and PAT में 188%, so काफ़ी अच्छे numbers हैं. And how do you see कि sustainability of these numbers? So sustainability इसलिए है क्योंकि because scale आ रहा है. पहले scale छोटा था, अब जब scale आ रहा है तो उससे फिर efficiencies और develop हो रही हैं, controls भी better हो रहे हैं, automation हो रही है. तो processes improvement is one part. Category management is another reason where we have started focusing on categories which are high margin categories, या फिर जैसे fish है, या फिर value added में अभी हम आए हैं. तो ये उसी तरफ direction में हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा margin secure रहे, if not additional. Okay. अभी currently it's something 16% का EBITDA, right, margins. So how do you see in future कितना you are targeting? See, ऐसा मतलब there is no specific number in our mind that we are focusing on. कितना जाएगा, क्या रहेगा, it is all very speculative. So I would not comment on anything speculative, but the idea is that we are consciously and aggressively looking to add new products in the fold which has high margins, number one. Okay. Number two, we are building a deeper इंटीग्रेशन एट द बैक एंड जहाँ पे हमारा मार्जिन और इम्प्रूव रहे. और नंबर 3, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा हमारा प्राइस कंट्रोल बढ़ेगा. यही 3 लिवर्स हैं जिससे वी वुड सी अ रीजनेबल अपटिक इन द बॉटम लाइन इम्प्रूवमेंट. सो इसमें स्कोप है अभी और भी, क्योंकि छोटे स्केल पे आप एक नंबर अचीव कर पाते हैं ना, वो आपने कर लिया. अब आप बड़े स्केल पे जा रहे हैं तो फिर नंबर तो इम्पैक्ट आएगा ही, रेवेन्यू तो बढ़ेगा, प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग अ सर्टन मेजर्ड अप्रोच ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट, एफिशिएंसी. वो हमको लगता है कि हमारा एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ है. So that's where I think there will be some improvement there also. But still, to like any idea जहाँ पे ये stabilize हो जाएगा margin? Currently it's 16, so
any idea like 20, 25, 30 tak, like this is something. Yeah, I think maybe a few percentages up is where we would see, not to a large extent, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, but broadly थोड़ा improvement होगा इसमें. Okay. In terms of sales growth, like past track record be very good. So कितना target है like as an investor, as a shareholder के point of view से 2-3 year down the line या 4 year down the line, any target like. So we are looking at to be 5x in the next 2 to 3 year horizon, which is very much possible considering demand is not a challenge. So it's only about how much market we can tap, and also because we're focusing through all distribution formats, तो growth की तो कोई problem है नहीं, मुझे लगता है. Okay. So 5 to 6x in 2-3 years along with margin expansion. Correct. Right. And in terms of जो CFO का एक concern like I was saying कि negative है. So how do you see cash flow from operating activities को like. देखिए, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारा अभी जो फोकस है दैट इज़ ऑन रीचिंग अ सर्टेन माइलस्टोन एज अ ग्रोथ, जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम प्रॉफिटेबल हैं, उसमें हमारा टॉप लाइन ग्रोथ चल रहा है, वो एक हमारे लिए अभी पैरामाउंट है. बाकी सब जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बिजनेस इकोसिस्टम में डिप्लॉय होती हैं, whether it is working capital, whether it is infrastructure, whether it is any kind of other community development or ecosystem improvement, वो सब जो है वो एज अ बिजनेस जो डिमांड करता है वो हमें देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारे को रिजल्ट नहीं मिलेगा. Right. पॉइंट इज़ दैट. तो हम अगर इवेंचुअल गोल पे फोकस करें या फिर बीच में जाएं या नीचे जाएं और ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाएं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ. तो फोकस एक टाइम के लिए हमारा अभी यही है कि इस इतनी लेवल की ग्रोथ हमारे पास आनी चाहिए. Okay. Like CFO is negative, so आपको external funding का need होगा like considering जो growth rate को sustain करने के लिए. मे बी एंड मे बी नॉट, बिकॉज वो तो हमें कॉन्शियस चॉइस है ना हमारी कि हम वो नेगेटिव कर रहे हैं क्योंकि हमें फर्दर ग्रोथ लेके आनी है. अगर हम एक लेवल का ग्रोथ नहीं, जैसे अभी हमारा हम 70-80% ग्रोथ कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि नहीं हम 20% ही ग्रो करेंगे, तो वहाँ पे वो नहीं रहेगा. तो ग्रोथ उस लेवल पे फिर वेरी करेगा. Right. So now let's discuss the budget का जो thing चल रहा है. So budget is around the corner and how do you see, what's your expectation being a founder in this industry? क्या चीज़ें government should focus on? देखिए, गवर्नमेंट आई थिंक एक चीज़ जो बहुत अच्छी फोकस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जहाँ पे एग्री में किसी को नहीं आने देते हैं, वो सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे इतना पुश बैक है फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है. वेयर लेट्स से कोई इंटरनेशनल मीट कंपनी आ गई इंडिया में, तो फार्मर्स का क्या होगा, डोमेस्टिक फार्मर्स कहाँ जाएंगे. तो ऐसे करके जो ड्यूटीज़ उन्होंने लगाई हुई हैं एग्री पे, दे आर गुड थिंग्स फॉर द सेक्टर, नंबर 1. Okay. नंबर 2, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोर्ट के लिए खुल रही हैं, वेदर व्हेन देयर इज़ नो टैरिफ और लिमिटेड लेसर टैरिफ, दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ लाइमलाइट इन द इकोसिस्टम. तो जो फूड प्रोसेसर्स या एक्सपोर्टर्स बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए इट बिकम्स मोर लुक्रेटिव to buy from India, because the pricing goes drastically down. तो then एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है. और तीसरा है करेंसी बेनिफिट, where the Indian currency is weaker and the Indian international currencies are higher. So उनके लिए product pricing plays a very critical role, and it's a no-brainer for them to buy from India. So tariffs are, the kind of FTAs which are happening. I think this is in the right direction to basically create more thrust in the demand for Indian goods and Indian products, which is where the opportunity is. Okay. And do you have an expectation that government should do this in the budget? It will be good for the industry point of view. देखिए, बजट तो इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड एरिया. गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर फूड प्रोसेसिंग ऑलरेडी. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आप अवेल करके एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, सेटअप लगा सकते हैं. गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग इन दैट. स्टार्टअप लेवल पे भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. तो आई थिंक
government should look at relaxation of certain taxes for investments. I think that if goes down, will create FYI interest back in the stock markets. So that I think would be a head turner. Yeah, that everyone is watching because last 1-2 years से काफी pain चल रहा है. Correct, Especially small and mid cap side. correct. Okay, so how you're seeing the US India की जो deal नहीं हो रही, what's your take on it, and as an industry how will it impact considering जो हमारा export भी होता है, fishery का बहुत बड़ा export है, so what's your take on it? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ यूएस को नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज़ में भी है. यूएस में थोड़ा ज़्यादा होगा कुछ प्रोडक्ट्स में कम होगा. Right. बट अगर हम एग्री में और फिश में बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था. ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई इतना डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट आएगा, एटलीस्ट फ्रॉम अ फूड कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग. But when you look at clothing, when you look at other categories, of course, they have a certain larger chunk which has been impacted. India does shrimp export also. Shrimp का बहुत अच्छा market है. तो वो उन्होंने सबने एक ऑल्टरनेटिव मार्केट्स उन्होंने चूज़ कर ली हैं और उनके बिजनेसेस चल रहे हैं. आई डोंट थिंक कोई बिजनेस बंद हुआ है इन फूड बिकॉज ऑफ द यूएस FTA नॉट हैपनिंग. Government has given a lot of support through banks and through other mediums so that they are able to open new channels. Okay, and EU FTA deal को how you're seeing in terms of? ये बहुत बढ़िया. I think this is a very good opportunity for attracting customers from Europe. And we with the new business we are seeing that momentum where a lot of European retail chains and brands and food brands are looking at India very, very keenly now. So that as in, because it's not only about the number, it's also about ease of doing business. Right. The FTA happens, it's also about that कि हमारा handshake हो गया, अब हम easy तरीके से काम कर पाएंगे. तो वो ease of doing business is also a very hidden opportunity which gets highlighted. Right, and are we ready to meet the quality of export in West जो है? या एब्सोल्युटली. वहाँ पे हमारे को इतना मतलब देखिए, उसमें इंडस्ट्री में और मोमेंटम की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है कि जो अभी करंट इकोसिस्टम है वो नहीं फुलफिल कर सकता है या वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, और एक लेवल का ग्रोथ चाहिए, डेफिनेटली चाहिए. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपोर्ट में द कंपनी दैट यू एक्वायर्ड, वो कहाँ पे फोकस, विच कंट्रीज यू आर टारगेटिंग? We are exporting to Canada, we are exporting to UK, we are exporting to Middle East and Europe. ओके, एंड कितना परसेंट ऑफ द रेवेन्यू होगा ये इन फ्यूचर? Approximately 80-90% एक्सपोर्ट है. नो, इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेटेड लेवल, Yes. हाउ कितना पाई कंट्रीब्यूट करेगा इन योर रेवेन्यू? Which country are you saying? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एज अ कंसोलिडेटेड लेवल, एक्सपोर्ट विल कितना अकाउंट करेगा Okay. So that ways it will be very small, because by the time we're looking at 26-27 में, it will be just about I think 10-15%. in how much, 2-3 years में? Yes, 2-3 years it could be about 25%, 30%. Okay. So now I want to ask, recently your company got listed, right? So how has the journey from unlisted company founder to a listed company? Because you have to do con calls, right? Investor meet. So how is the pressure, or what changes have been done in your life? So I'm frankly pretty happy. I have no complaints. After getting listed, there is more credibility which you get as a business. There is more respect you get from financial institutions, and because we have raised capital in the past from private investors and even private equity investors, so I know the drill कि वहाँ पे क्या क्या challenges आते हैं और generally what is the reporting like, etc. So I think public level पे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. It's the only फ़र्क is that because of the market sentiment, you are more prone to a certain different kind of impact coming to your overall market cap, etc. But other than that, from a investor interaction, reporting, compliances, they're all good. Do you feel because once you become listed, quarterly or half yearly numbers you have to report,
सो एज अ फाउंडर आपका विजन शॉर्ट टर्म हो जाता है रादर देन सीइंग अ 3 4 5 ईयर डाउन द लाइन पिक्चर, बिकॉज यू हैव सीन दिस ट्रेंड इन मल्टीपल कंपनीज, वो लॉन्ग टर्म विजन छोड़ के अब क्वार्टरली रन रेट पे चलते हैं. I would agree to that. This is something which I am noticing as well, that everybody obsesses about quarterly results Right. here. And उससे फिर जो आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट लाना चाहते हो वो डिमिनिश हो सकता है. बट लेकिन businesses which are operating in high growth markets with the right strategy ideology, उनका एक आध क्वार्टर मिस हो जाता है तो they'll bounce back next quarter. सो ऐसा नहीं है कि मतलब ओवरऑल एनुअल ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट आता है. क्वार्टरली कुछ लेवल पे डिसरप्शन आता ही है, बट दैट्स अबाउट इट, which gets absorbed anyways. People are focusing on businesses. But yeah, as a retail investor, people focus on regular price fluctuation. हाँ. So see, as a retail investor, of course, they're more, I see that they're more short term in Right. the SME space. So that is one thing which I think can be actually attempted better in the budget. As I said, that if the long term taxation by government gets relaxed, maybe the short term investors become long term. So that is one motivation which government should definitely try, कि शॉर्ट टर्म वालों को लॉन्ग टर्म कैसे बनाया जाए. Right. ये एक बहुत क्रिटिकल पीस है, वेयर यू नीड मोर एजुकेटेड इन्वेस्टर्स Right. in the playbook rather than more uneducated or less educated or trading mindset, or people who are not looking at the company fundamentals. They're just looking to make a quick buck. And then I think that attitude is something which creates more FOMO frenzy, and eventually उससे लॉस ही होता है. मेरे को लगता है कि आप पैसा नहीं बना पाते हो. Right. पैसा बनाने के लिए आपको एक लेवल पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए. Because now the trend is every quarterly matching the results, slight miss हुआ, then stock tank होते हैं, then like Twitter and all पे trend होती चीज़ें. There's something the like things are going on, and like right now your like company is listed, so you regularly watch the price and anxiety how it plays in. I mean, not really. It is definitely a distraction from your regular work. And generally I don't look at the price. I look at that the business has to perform, and rest is everything what the market sentiment is. अब रोज सेंसेक्स देखो, रोज ये देखो, वो CNBC चला के रखो. I don't do that. Okay. In terms of recently the prices of the companies काफी fall कर रहे हैं, so valuation attractive हो रही है. So are you seeing this as an opportunity to buy the? Yes, absolutely. I have bought myself. मैं तो अभी खुद ही beef up कर रहा हूँ, because I need to add more equity in the business on more long term. I'm a long term investor. Okay. So I would always jump onto such opportunities जहाँ पे price मुझे लगेगा कि if it is a sweet price, right price, then I will definitely beef up. So मैंने खरीदा है अभी stock. Like कितने, like if you can disclose? We've done a disclosure. I think it's all updated, but it's not very drastic because I'm still an entrepreneur and don't have that kind of liquidity with me. So, but whatever money I make through my salary, I reinvest. Okay. Currently your shareholding is 28 to 30% approx, Yes, right? yes. So how are you protecting the minority shareholders, and why the promoter holding so low in the company? देखिए, मैं शेयर होल्डिंग से अपने एफर्ट को कभी भी गेज नहीं करता हूँ. माई एफर्ट इज़ 100%. I look at it 100% my responsibility rather than 30% my responsibility. Right. So this is something which is important to understand. मैं 30% काम करके कभी भी 100% रिजल्ट नहीं लेके आ सकता. ठीक है, दैट इज़ द बॉटम लाइन. तो अगर 100% काम करेंगे तभी मेरे को 100% रिजल्ट मिलेगा. Right. ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस है नहीं, फ्रैंकली. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एवरीबडी, ऑल इन्वेस्टर्स who have shown interest and trust with us, lot of respect is there, and I'm very protected of that interest, where I should not be operating like a minority or majority. It's whatever my shareholding is. Point I'm saying is that मेरा जो effort है वो extra mile ही रहेगा. It's not going to be lesser. I don't have any other interest
other than my business. My income is coming from my business. I'm more invested here, and no other interests. Okay. And in terms of like, are you planning as an institutional driven company or as a founder driven company, like in long term? Definitely, I would want as an institution, driven company, but till a certain scale, you have to be a little more dynamic, agile, making, fast decisions, not getting lost in certain, processes too much. Ki then, you're not able to innovate or do what you are supposed to do. So we have to run till a certain level, and then, maturity, overall will sink in at different levels. Okay. And can we expect a stake sale in future from you? Like, No. no. Okay. Okay. That's a good thing like for the shareholder as well. And like regarding the business that you started, so how were the support from friends and family? Because it's something a bit like, as I told, dirty industry seems. So how was the support from them? There was no support, I would say. Unfortunately, it has been a very lonely journey, and it's a very unorganized, messy category. So nobody could really relate with it too much, and it's uncharted territory. You have to be on your own. It just makes you more stronger, I think. So focus on filling your own cup on your own rather than depending on anybody has been my mantra mostly. Okay. But now, since seeing the growth of the company, the things have changed now. The same people who were seeing it as a like a हमें नहीं support करना like. Yeah, that is true, that is true. So there is a lot of change in people, which I have seen, but again I'm saying that to me it doesn't matter much, because I've been mostly very self-consumed. Okay. Keep focusing on myself and rest, people's reaction or people's, whether it is positive reaction or negative reaction, it doesn't impact me much, because मेरे को तो जो करना है वो करना ही है. अब उनको जो समझ आता है, जैसे ठीक लगता है, वो रिएक्ट करते हैं. But good space to be in after listing. I would recommend to all small SME companies to explore SME listing for their growth. There are enough opportunities to finance your growth through different formats. Even banks are there and different financial institutions are there. But I think the most important thing is getting your model correct. वो मॉडल, बिजनेस मॉडल जब अगर आपका ठीक नहीं है, तो फिर सब कुछ जो है वहाँ पे क्रैक आ जाता है. तो वो एक बारी आप अगर क्रैक कर लो अच्छे से, दैट आई थिंक इज़ बेटर. Was it easy journey to get listed या काफी like challenges थे? No. I can't even imagine the kind of hard work which has gone in everything what we have been able to achieve, and it has not been easy at all. It is not easy, at least for me. Some people may get it easy also, but not for me. And during this journey of 10 years, what were some like key learnings or even that you would like to share जहाँ पे you felt like this has been a core building, like it has made you much stronger? Yeah. Never rely on one plan. Always have 3 plans, because most of the time the first plan will not work, has been my observation and experience. But the second and the third will work. So if you have those 2-3 backup plans, in terms of, let's say, if you're looking to launch a campaign, to launch a new product, for example, you may go all gungo that this is it. Okay, Right. this will work. Right. But don't be surprised if it doesn't. Okay, have another option with you, and don't get disheartened through the journey. You have to be very, very strong-willed, and ready for failures. And failures, like, every day could bring a different failure. Like somebody leaving, in your team Right. may hurt you. Somebody doing any kind of pilferage in the team may hurt you. Right. So you have to go beyond these hurts and look at the bigger picture. Look at why you started. Look at where you want to be, so that these myopic and micro-analysis paralysis approach, stay away from that. Right. Okay. Because see, it's a paradox. You have to do it for the business,
but then you have to disengage also from that thought process and go back to the bigger picture. Right. If you don't stay at the bigger picture, the smaller things will consume you and you will become a small fish in the fry, and that's where you will get lost. Okay, yeah, nice learnings. And on the day one when you were starting Zapfresh, so like उस time जो company सोची थी like this would be my company, so same है or like complete different है? Because like it happens in many journeys that you see कि मेरे को ये बनाना था but you change the completely different the product. नहीं, काफ़ी हद तक सेम है. वी स्टार्टेड एज एन ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम होटल्स रेस्टोरेंट्स को डे वन से बेच रहे हैं. तो वो हमारा स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं हुआ. ठीक है. और जैसे मैंने बोला दैट नाम भी हमने इसलिए रखा था बिकॉज वी वांटेड टू गेट इनटू अदर कैटेगरीज रादर देन मीट ओनली. ठीक है. तो अब वो भी कर लिया है. तो आई वुड से हाँ, ये लिस्टिंग नहीं सोचा था. Frankly. Okay. This was something completely unforeseen, but business strategy wise, more or less, very very aligned. So अभी like as a company listed, so ऐसा होता है like people evaluate your net worth ऐसे because private. Yeah. That happens. That happens. The banks do that, Right. whenever they interact with us. So that's what I said कि वो credibility बढ़ जाती है, that people, it's not paper value anymore if it is in the private market. So that way is your net worth valuation. But again, आपने तो बेचना ही नहीं है. हाँ, तो फिर उसका भी क्या करोगे आप? वो ऑनलाइन दिख रही वैल्यू है. हाँ, बट उसमें वही बोल रहा हूँ, उसका करोगे भी क्या जब आपने बेचना ही नहीं है. आप आई एम तो लुकिंग एट बाइंग मोर, सो फिर उसका भी रेलेवेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है. Right. So essentially you become a very very less person in terms of consumption yourself, obsession on material things. ठीक है, everything is good for family and all, but then you focus on कि larger goal is to develop and grow the business. उसमें नेटवर्थ कितनी आ रही है, कितने पैसे हमारे बन रहे हैं, ये वो चीज़ें ना बहुत बैक सीट ले लेती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में. और फिर वो आदत बन जाती है. कोई बोलता भी है तो आपको लगता है कि इट्स ओके. it basically gets into your system too much that you get addicted to work, addicted to the vision, and उसके अलावा everything becomes just a good to have tick box side of a thing. And during this journey, what was the one moment or like one or two moment that you felt कि हाँ like I have achieved something in life? I would sure listing would be one. Like, Yes, listing, definitely. It is a great milestone, no doubt about it. I remember I was numb for about a couple of weeks after getting listed. I did not know, how it happened and, what to say, what is the reaction. It was a very emotional moment overall. And I think the reason it was also emotional is because it was very unforeseen. मैंने बोला प्लान नहीं किया था Right. कुछ, तो फिर वो अनप्लान्ड कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अनप्लान्ड अभी तक सब टाइट ही मिलता है आपको, सारा कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है. वो आपको होता है कि अगर आपने प्लान नहीं किया तो आपको मुश्किल मिलेगा सामान. बट आप अनप्लान में तो आपको नॉर्मल है, अभी तो प्लान किया ही नहीं है तो मुश्किल आएगी. हाँ. तो यहाँ पे उल्टा था. यहाँ पे तो प्लान नहीं किया था. ठीक है, 1.5-2 साल पहले हमने सोचना शुरू किया था, उसमें मेहनत लगी. बट बिफोर दैट बिकॉज 1.5-2 साल से पहले से हम चला रहे हैं, तो वहाँ पर वो एक मेमोरी भी रहती है सबकॉन्शियस में जो आपको ड्राइव करती है दैट ओके दिस इज़ अ कंप्लीट सी चेंज. Right. And in terms of have you ever get a guilt regarding the business that you're doing in terms of like it's a meat business, so like being in India it's very like a sin category भी देखते हैं कुछ लोग. Right? अभी तो मीट नहीं है ना, अभी तो हम वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में भी हैं, तो अब मेरे को खुश होना चाहिए दैट वी आर मोर सात्विक. Okay. तो मतलब ये आई थिंक सी देखिए, हमने वी डोंट डू स्लॉटरिंग, आई टोल्ड यू. ठीक है, हमारा एक सिर्फ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, क्लीनिंग का काम है. तो और हमारे ना करने से वो मीट कंजम्पशन कम तो हो नहीं रही. आप देख रहे हैं मार्केट बढ़ रही है. Right. ठीक है. Right. तो मार्केट अगर कम भी हो रही हो या स्टैटिक हो तो हमें लगे कि हाँ यार, मतलब लोग कम खा रहे हैं, तो हम क्यों इतना ज़्यादा इसमें अपना हाथ धोने पे लगे हुए हैं. Right. ठीक है. तो मार्केट वहीं की वहीं है, लोगों को खाना है, प्रोटीन बढ़ रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग. एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट
that it is not nutritious. हेल्थ एंगल तो है ही ना इसके अंदर. राइट. प्रोटीन है, हेल्थ एंगल है, डेफिशिएंसी है. तो हम तो एक अलग मूवमेंट पे हैं जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि आप अच्छा खाना खाएं. इम्प्रूविंग द हेल्थ. करेक्ट. तो आप अच्छा साफ खाना खाएं, केमिकल फ्री खाएं, प्रिजर्वेटिव खाएं, वेल पैक्ड खाएं, लोकल से ना खाएं. तो वो वाली चीज़ एक मोर इज समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस गिल्ट ऑफ कि मैं मीट में हूँ. और अब जैसे मैंने बोला कि हमारा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स इज गोइंग टू बी फूड, जिसमें अभी ये वैल्यू एडेड में 200 प्रोडक्ट्स हैं अभी जो हम कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे वेजिटेरियन हैं. टू नेम अ फ्यू लाइक. यार इसमें हम वी आर डूइंग समोसा, ओके. we are doing spring rolls, we are doing gravies, we are doing momos, we are doing ram laddu for Okay. some customer who is sitting in Canada, is looking for that desi ram laddu, you know. So there are these taste aspects which are, and the opportunity is what attracts us as a entrepreneur and as a business, but not कि ये मीट है या वो है. अगर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पैसा बनेगा तो हम करेंगे. अब बहुत सारे मीट बिजनेसेस आप देखेंगे कि वेजिटेरियंस भी चला रहे हैं इंडिया में. ओके. हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक इट इज़ अ वेरी मतलब अल्कोहल है, जैसे लोग अल्कोहल, अब अल्कोहल क्या है? इट्स ऑल्सो सिन प्रोडक्ट. सन प्रोडक्ट, बट एवरीबडी इज ड्रिंकिंग, मार्केट इज ग्रोइंग अप. तो वो कौन कर रहा है? इवन आईटीसी का भी टबैको. करेक्ट. ITC started with tobacco. Now nobody looks at it as a tobacco company. करेक्ट. उसका मेजॉरिटी अभी भी शायद टोबैको से ही आ रहा है. यस. ठीक है. 70% अप्रॉक्स समथिंग. हाँ, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो कि वो सिन कैटेगरी में नहीं है? राइट. बट एज अ पर्सन जो लाइक, आप लुक एट एनी रेस्टोरेंट. राइट. लुक एट अभी जो इनका हुआ है सफायर फूड्स एंड देन देवयानी का मर्जर हुआ है, वो भी तो सिन है, वो भी तो नॉन वेज बेच रहे हैं. राइट. तो रेस्टोरेंट्स में नॉन वेज वेज दोनों बिक रहा है, हमारे पास वेज नॉन वेज दोनों बिक रहा है. तो सिन कैसे हुआ? बस बिकॉज हम रॉ बेच रहे हैं तो वो सिन में आ जाता है. आप समझ रहे हैं? हाँ. राइट. अगर आप कुक्ड बेच रहे हैं तो सिन है ही नहीं, हाँ, फिर नहीं है. क्योंकि वो उसने शेप बदल ली. राइट. तो सब मैटर ऑफ परसेप्शन. So from the shareholder point of view, Zapfresh could be the next what? We are looking at ourselves as a food conglomerate, which has varied interest in complementing categories which are focusing on domestic and international business. इसके अंदर we'll have fresh produce, perishables as a category, and then there is value added as a category. You will see what probably DS Group is doing, what you will see ITC is doing. They have varied products as a basket, and then distribution is across the channels. Right. So we see ourselves as a large FMCG conglomerate in the making, which will cater to a new age customer and also a business. Okay. Are you also planning to fake meat or like the product market? No. Because उसका like काफी डिमांड बढ़ रहा है. So how do you see it? Like, हमें फेक कुछ भी पसंद नहीं है एक्चुअली. okay. या तो original खाओ. Including the product. So we don't want to do any replicas, no fake, nothing. It's just a very मतलब क्या चला है फेक अभी तक इंडिया में? आप बताइए. कपड़ों और ब्रांड्स के अलावा तो फेक तो मुझे लगता नहीं कि फूड में फेक कुछ होना चाहिए. फेक पनीर चल रहा है आजकल बहुत. That's तो, a very big तो controversy. अब these are not the right practices. Nothing should be mixed in the product. It should be as fresh as possible, and no cheating with the product. No, not in terms of cheating, as in if you'll see the like same taste आएगा, but the product is vegetarian. नहीं, वो तो गिमिक है ना. गिमिक क्या है? आई वॉश है. Right. आप तो कुछ और बता के कुछ और खिला रहे हैं, उसको कुछ और टेस्ट आ रहा है. आप समझ रहे हैं? Right. So you are just being a little, unfaithful to the product. Okay. And how much money is enough for you? Yeah, this is very subjective. You're asking specifically for me. Specifically for you. I think a comfortable life today in India doesn't require more than a certain lifestyle price which is in a tier 1 market. I stay in a rented home, तो मेरा रेंट निकल जाए, मेरे खाना और खाने कपड़े बच्चों के लिए, बस that's it. उसमें कितना खर्चा है? Right.
क्या खर्चा उसमें? ज़्यादा कुछ नहीं. तो बस वही आपका दैट इज़ इनफ. उसके अलावा तो देयर इज़ नो एंड. जितना मर्जी बड़ा घर ले लो, जो मर्जी कर लो, उसमें देयर इज़ नो फन इन इट. आई थिंक द फन इज़ इन ग्रोथ, whether it is your individual growth, whether it is your family growth, whether it is your health, whether it is your business. Spending का तो कोई end ही नहीं है ना. Because people have a dream कि कमिलियाज में घर होगा, then we will be happy. नहीं, मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कमिलियाज में घर हो, यहाँ पे हो. My thought process is that you should live a comfortable life. Everybody should be healthy, and you should not cheat anybody in your life. Business wise, be good to people in your workplace. Be honest with investors and intentful life, conscious life जिए तो better है. उसमें ज़्यादा मेरे को लगता है कि वैल्यू है. You've seen so many big businesses and business empires. वो क्या कर रहे हैं, तो वो कौन सा इतना स्पेंड कर रहे हैं. Right. इवेंचुअली वो फिलैंथ्रॉफी में चला जाता है. हाँ, राइट, ये होता है. यही होता है ना. तो फिर मतलब एक बड़ा गोल होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसमें बोले कि इतना पैसा मुझे अपने लिए चाहिए, वो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप निकल जाएगा. ओके. जब आपको मिलेगा ना जो आपको चाहिए था, फिर आपको लगेगा कि ये नहीं चाहिए था इतना, तो ओके. इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी. बिकॉज बियॉन्ड तो अ उसके सर्टेन. हाँ, बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट इट लूजेज द वैल्यू. वो अभी हमें नहीं पता होता है. राइट. पहले जब नहीं होता है तब नहीं पता होता है. राइट. जब मिलता है तब पता चल जाता है कि ठीक है, इसका कोई इतना रिक्वायरमेंट है नहीं. Right. And how are you seeing AI as an opportunity or a threat? See, AI, I think, is definitely an opportunity to create, more improvised versions of existing businesses. Where let's say in food security is a big problem. Traceability is a big problem. If AI can solve those things, I think that is something which should be looked at seriously. And in terms of other sectors, it's already making its waves. So I don't think AI. I think AI is interesting. So from a business point of view and as an employee point of view, so are you hiring more or you're seeing replacing people through AI? No. We are hiring more. We are not replacing people. Okay. And as an optimization level in a company, is it increasing your efficiency in a company? We haven't seen any efficiency on AI as of yet, frankly. So I would not say that it has impacted in anything much in food as such. Okay. It's a category specific impact, I feel. जितना ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरी लाइक डिजिटल में इम्पैक्ट है, आईटी में इम्पैक्ट है, वहाँ पे इट्स बिकम मोर ईजियर. सो दैट वेज देयर विल बी सम डिसरप्शन, बट नॉट इन आवर सेक्टर. So regarding exports, अभी कितना revenue आ रहा है? As of date, there is no export exposure which we have. We have entered into an acquisition. That company is into exports, so we will start seeing export reflecting in our business and financials from the new financial year, not as of now. So last question before wrapping it up. So like if you are a 20-year-old Dipanshu, like what would you advise him इंडिया में business करने का like कैसे करना चाहिए, and what are the learnings and what you would advise to him? I would suggest to start as early as possible. So 20 is the right age to start learning and being in an environment which is all business. Stay away from MNCs. Stay away from IT companies. Be in the business community. Like even stay in Gujarat, for example. All Gujaratis are business guys. Marwadis, Baniyas. जितना आप उनके साथ रहेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा. ये मैंने भी किया है. जैसे मैंने बोला कि एट अर्ली एज आई यूज्ड टू बी इन द लोकल मार्केट शॉप, बैठ रहे हैं, धंधा सीख रहे हैं. तो लर्निंग एज मच एज पॉसिबल एवरी डे. यू शुड बी लर्निंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी फ्यूलिंग योर विजन. Okay. अब बहुत टाइम पे एट 20 यू डोंट हैव द विजन ऑल्सो. ठीक है, बट एक ये विजन तो हो सकती है ना कि बिजनेस करना है. यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं हो सकता, या यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है. तो अगर आपको ये क्लियर है एज अ 20-year-old, then I would suggest to start. Start early. Start with your business. 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 Start with
दैट यू वांट टू डू बिजनेस और बहुत अच्छे से क्लियर है, देन उसके बाद पाथ इज स्ट्रेट. पाथ इज ओनली एंड ओनली हाउ डू आई मेक मनी every day. Okay. Okay, that will give you a sense of movement towards the path which you are supposed to be on, and it will happen organically. So instead of thinking कि मेरे को ये नहीं करना है वो करना है, ऐसे नहीं सोचना है. हमें ये सोचना है broadly हमें क्या करना है. broadly हमें धंधा करना है. जब हमने when I was 20 I never thought I will do a meat business. Right. So it is not about what kind of business, it is about business. That should be the theme of your life. करना है. करना है कि business ही करना है और कुछ करना नहीं है. Don't have a plan B here. You can have a plan B in in strategy. Right. Don't have a plan B in your life goals. That is the difference. So जब भी have a plan B in life goal तो वो plan B ही मिलता है आपको. But in terms of, you'll see people are running behind the fancy job titles. वही मैंने बोला ना, यू डोंट हैव टू बी इन MNC, यू डोंट हैव टू बी इन एन IT कंपनी, यू हैव टू बी इन अ बिजनेस कम्युनिटी ओरिएंटेशन. जितनी छोटी कंपनी उतना ज़्यादा लर्निंग, वही आपके लिए बेटर रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट. एंड बेटर है अभी तो इतना इकोसिस्टम डेवलप हो गया, आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओगे आपको सीड फंडिंग मिल जाएगा, उससे आप यू कैन स्टार्ट. सो मेनी कॉलेजेस आर इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स. सो इट्स I think more about inculcating and feeding your obsession on a day-to-day basis. That how are you more obsessed? Like for me, मुझे नींद नहीं आती थी रात को because of my obsession, to Okay. make money. Okay, it was that ingrained. I was not able to sleep because I was always consumed by this thought that what should I do? What am I not doing? रेस्टलेसनेस थी एक टाइप की. तो इस लेवल का अगर कीड़ा है तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे. So thank you, Dipanshu. थैंक यू सो मच अभिषेक, इट हैज़ बीन अ प्लेजर बीइंग हियर. Same here.